Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 6, I welcome you all on the behalf of 502 Model College Girls Campus. My name is Rukhsana Latif and I am your general science teacher. Today is my lecture number 2 and the topic of the lecture is gears and its uses. So let's start our lecture. Students, before we start our today's topic, I would like to revise the previous one because today's lesson is the continuity of the last lecture. In our last lecture, we started chapter number 9 of your textbook, that is Forces and Machines. In this chapter, we studied the definition of force, that force is push or pull on any object. We learned about the definition of machine, that a simple machine is a simple tool used to make our work easier. Lever, wheel and axle, pulley, inclined plane, wedge and screw are the simple machines. We learn about the complex machines, that different simple machines combine to form complex machines like tractor, cars, fans, etc. Then we learn about wheel and axle, that a wheel and axle consist of a large wheel fixed to a smaller wheel called the axle. And we also studied about the different examples of wheel and axle, that is a screwdriver, steering wheel, a tap handle, a crank on the well, etc. Then in the last lecture we also learned pulley. What is a pulley? Pulley is a simple machine which can be used to lift loads easily. We studied about different types of pulleys, that is fixed pulley and movable pulley. So students, this was all about the previous lecture. Now we come to our today's topic, that is gears and its uses in our daily life. Students, now open your books at page number 93 so that we can start our today's topic, gears. A gear is also a modification of wheel and axle. Gear wheels has teeth around it. The teeth of one gear usually fit into the teeth of another gear. Gear are also used to transfer the force from one wheel to another. They can increase or reduce the speed. तो बच्चों, गियर्स का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि गाड़ियों वगैरह के अंदर जो है गियर्स यूज़ होते हैं. अक्सर आपने अपनी लाइफ में सुना भी होगा, जब कोई गाड़ी चल रही होती है, आप अगर गाड़ी में बैठे हैं तो गियर लगाने की बात होती है कि इसका ये वाला 1 गियर लगाना है, 2 गियर लगाना है. तो उससे आपके माइंड में फटाफट यही चीज़ आती है कि गियर जो है उसका ताल्लुक मोटर व्हीकल्स के साथ है. तो गियर जो है ये एक मॉडिफिकेशन है, व्हील एंड एक्सिल की मॉडिफाइड फॉर्म है. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो गियर व्हील के अराउंड जो है वो एक टीथ नुमा स्ट्रक्चर जो है बना होता है, और एक गियर का जो टीथ होता है वो दूसरे गियर के व्हील के अंदर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाता है, और इसी तरह फिर ये गियर जो है वो काम करता है. और गियर का जो यूज़ है वो क्या है कि एक व्हील के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दूसरे व्हील के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, और इस तरह से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज और रिड्यूस द स्पीड. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ियों के अंदर ही जो है गियर्स यूज़ होते हैं, बल्कि गियर्स जो है वो गियर का जो प्रिंसिपल है वो बाकी चीज़ों के अंदर भी अप्लाई होता है. जैसे अगर आप हैंड ड्रिल को देखें तो उसके अंदर भी जो है वो गियर सिस्टम ही यूज़ हो रहा है. अगर आप एक बाईसाइकिल को देखें तो उसका भी एक अपना गियर सिस्टम है. इसी तरह अगर आप एक वाइंड अप क्लॉक को देखें, घड़ी को देखें, तो उसके अंदर भी जो है वो गियर सिस्टम ही अप्लाई हुआ हुआ है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हील एंड एक्सिल की एक मॉडिफाइड फॉर्म है गियर, और ये टीथ नुमा शक्ल होती है, टीथ नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, और एक गियर का जो व्हील होता है दूसरे के टीथ के अंदर फिट हो जाता है, और एक के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो फोर्स ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे व्हील के ऊपर, और इसी तरह से वो मूव करता है और स्पीड को कंट्रोल करता है. स्पीड को इंक्रीज और रिड्यूस हम गियर सिस्टम के ज़रिए ही करते हैं. अगर आप पिक्चर के अंदर देखें तो फिगर 9.13 के अंदर आपको एक गियर की जो है वो डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है, जिससे आप इजीली इसके स्ट्रक्चर का जो है आपको समझ में आ सकता है. नाउ कम टू पेज नंबर 94, द गियर ट्रेन. द गियर वर्क इन टेम्स when two or more gears work together. It is called gear train or gear system.
Students, you know, gears work in groups, in team, and when two or more gears work together, it is called gear train, gear system. बच्चों, gear जो होते हैं वो एक टीम के फॉर्म में काम करते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा गियर मिलके काम कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं गियर ट्रेन या एक मुकम्मल गियर सिस्टम। जैसा कि आप पिक्चर नंबर 9.14 में देख रहे हैं कि आपको गियर्स दिखाए गए हैं एक गियर ट्रेन के फॉर्म में, किस तरह से गियर्स जो है वो ग्रुप्स में काम करते हैं और एक गियर का जो टीथ होता है वो दूसरे गियर के टीथ के अंदर फिक्स हो जाता है। वन गियर इज कॉल्ड ड्राइविंग गियर टू विच द फोर्स इज अप्लाइड, द अदर गियर इज कॉल्ड ड्राइवन गियर which turns due to the movement of the first gear। जैसा कि आपको पता है कि गियर के अंदर दो व्हील्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। जो एक पहला होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग गियर, ठीक है, और दूसरा ड्राइवन गियर। अब जो ड्राइविंग गियर है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ड्राइविंग गियर इज दैट गियर ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड एंड द ड्राइवन गियर इज दैट गियर विच मूव्स ड्यू टू द दिस फोर्स। पहले वाले गियर पे हम जो ड्राइविंग गियर है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से जो ड्राइवन गियर है वो मूव होता है। वी कैन यूज गियर सिस्टम इन टू वेज। दो तरह से हम गियर सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि व्हेन द ड्राइविंग व्हील इज लार्जर एंड द ड्राइवन व्हील इज स्मॉलर द गियर सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड। जब भी जो ड्राइविंग व्हील होता है वो बड़ा होता है और ड्राइवन व्हील जो होता है छोटा होता है, तो ये जो गियर सिस्टम होता है इसको हम यूज कर रहे होते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, राइट। और व्हेन द ड्राइविंग व्हील इज स्मॉलर एंड द ड्राइवन व्हील इज लार्जर, जब ड्राइविंग व्हील स्मॉलर होता है और ड्राइवन व्हील लार्जर होता है तो उस वक्त जो गियर सिस्टम यूज हो रहा होता है वो फोर्स को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि दो तरह से गियर सिस्टम्स को हम यूज करते हैं। पहली फॉर्म के अंदर ड्राइविंग व्हील जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरे सिस्टम के अंदर जो होता है ड्राइवन व्हील जो होता है वो बड़ा होता है। पहले के अंदर सिस्टम के अंदर हम स्पीड इंक्रीज करने के लिए गियर सिस्टम यूज करते हैं और जो सेकंड मैंने आपको बताया है वो फोर्स को इंक्रीज करने के लिए गियर सिस्टम जो है वो यूज होता है। अगर आप फिगर 9.14 को मजीद नीचे डिटेल में देखें तो आपके पास दो सिस्टम्स दिए गए हैं, एक गियर सिस्टम यूज टू इंक्रीज द स्पीड और एक जो है गियर सिस्टम यूज टू इंक्रीज द फोर्स। अब पहले वाले सिस्टम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग व्हील है वो उसमें लार्जर दिखाया गया है और दूसरे के अंदर जो है वो ड्राइवन गियर जो है वो बड़ा दिखाया गया है। तो इस तरह से ये दोनों सिस्टम्स इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली नजर आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज एन एक्टिविटी 9.4. You will need one set of gears and two labels stickers. Now we start the procedure. Put one axle in each of the four small gears. Make a mark on one tooth on each gear. Use the stickers to label one gear as the driving gear D and one as the driven gear D. एक गियर को जो है आप कैपिटल D से आप उसको लेबल कर दें और दूसरे को स्मॉल d के साथ। Put these two gears on the baseboard with the marked teeth touching as shown in the figure 1. फिगर 1 के अंदर आप देखें तो एक आपको ड्राइविंग गियर दिखाया गया है और दूसरा ड्राइवन गियर। एक को हमने कैपिटल D से शो किया और दूसरे को स्मॉल d से। तो सिंपली दो गियर्स को उनके जो टीथ हैं एक दूसरे को फिक्स कर दिया गया है जो कि आपको फिगर 1 के अंदर दिखाया गया है। उसके ऊपर उन्होंने एक जो है स्टिकर के साथ उसको मार्क कर दिया है। नाउ turn the driving gear one complete time around in a clockwise direction. Watch the driving gear as you do. Record how many turns the driving gear turns and what direction. तो आपने इसकी मूवमेंट को देखना है कि किस तरह से ये कितनी दफ़ा कितनी उस डायरेक्शन के अंदर कितने टाइम्स जो है ये अपना जो है सर्कल वो मूव करता है, कंप्लीट करता है। उसके बाद now put another gear between the driving gear and the driven gears as in figure 2. उसके बाद आपने क्या करना है कि ड्राइविंग गियर और ड्राइवन गियर के दरमियान में आपने एक और गियर को जो है वो लगा देना है और उसके बाद आपने देखना है now turn the driving gear in the step 5 and record what happens to the driven gear. आपने ये नोट करना है कि अगर उन दो गियर्स के दरमियान जो कैपिटल D और स्मॉल d हमने लेबल किए हुए हैं, अगर हम एक और गियर फिट कर देते हैं तो उसकी जो टर्न्स हैं उनके ऊपर क्या चेंज आएगा, ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है और नोट करनी है और
खुद से बतानी है। जैसे कि मैंने आपको गियर के बारे में पढ़ाया है, तो आपने मुझे बताना है कि जब दो गियर्स के दरमियान, ड्राइवन गियर और ड्राइविंग गियर के दरमियान में अगर एक गियर और हमने डाल दिया है तो उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर, जो उसके टर्न्स हैं उसके ऊपर क्या चेंज आएगा। नाउ फाइनली रिपीट दिस प्रोसीजर विद 2 गियर्स बिटवीन द ड्राइविंग एंड द ड्राइवन गियर। अब लास्ट जो फिगर है उसमें अगर आप देखें तो उन दो ड्राइवन और ड्राइविंग गियर्स के दरमियान में इन्होंने 2 मजीद गियर जो है वो लगा दी हैं। तो अगर हम 2 मजीद गियर्स लगाते हैं तो उससे उसकी जो टर्न्स है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 94 के ऊपर, जिसके अंदर 3 कॉलम्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ गियर्स इन बिटवीन, टर्न्स, डायरेक्शन। तो आपने बताना है कि जब ड्राइवन और ड्राइविंग गियर के दरमियान कोई 0 गियर है तब वो टर्न्स कितनी होंगी और किस डायरेक्शन में होंगी। अगर 1 गियर हमने और डाल दिया तब कितनी होंगी, और अगर 2 गियर्स हमने डाल दिए हैं तो तब उसकी टर्न्स कितनी होंगी और डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी जो है आपने इसको खुद से इस कॉलम के अंदर जो है वो सॉल्व करना है। और जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आएगी तो फिर जब आप लोग दोबारा से स्कूल आएंगे, ओपन होंगे, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको खुद से दोबारा करवा दूँगी। लेकिन फिलहाल इट इज़ अ टेस्ट फॉर यू कि आपने बताना है मुझे कि अगर आपको गियर सिस्टम समझ आ गया है तो इस चीज़ से मतलब आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि अगर उसके अंदर हम 1 गियर डालते हैं तो उसकी टर्न्स के ऊपर क्या फ़र्क आता है, और अगर हम उसके अंदर 2 गियर्स डालते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप सब बच्चों ने इस टेबल को फिल करना है। नाउ कम टू पेज नंबर 95, यूजेस ऑफ गियर्स इन एवरीडे लाइफ। Gear usually make part of more complicated machines. They transfer energy from one wheel to the other to change the direction of force. स्टूडेंट्स, गियर सिस्टम जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि गियर, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था जब हमने गियर्स का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो गियर्स का मतलब आप ये नहीं लेते कि गियर्स जो है ओनली जो है वो मोटर व्हीकल्स के अंदर ही यूज़ होते हैं, बल्कि गियर सिस्टम जो होता है हमारी डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, उनके अंदर यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको जब मशीन्स के बारे में पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू दैट मैनी कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सिंपल मशीन्स। डिफरेंट जो सिंपल मशीन्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स मशीन्स फॉर्म करती हैं मिलके। तो इसी तरह से जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं उनके अंदर गियर सिस्टम जो होता है वो यूज़ होता है, क्योंकि गियर सिस्टम बेसिकली क्या है, वो एक प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल है कि एक व्हील के ऊपर, एक गियर के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स की वजह से जो होता है वो दूसरा व्हील खुद ब खुद मूव करता है और फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो हैं उनके अंदर यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें एक हैंड ड्रिल मशीन की, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर 9.15 के अंदर देयर इज अ हैंड ड्रिल मशीन। अ हैंड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ 2 mutually perpendicular gears. When its larger gear is rotated in a vertical plane, the smaller gear linked with the rotate with a very fast in the horizontal plane. A hand drill machine is used to make holes in wood. आपको पता है हैंड ड्रिल मशीन अक्सर घरों में भी यूज़ होती है। ये डिफरेंट जगहों पे होल्स करने के लिए यूज़ की जाती है। और इस मशीन के अंदर भी अगर आप पिक्चर के अंदर जैसे देखें कि एक जो होता है वो ड्राइविंग गियर होता है और दूसरा जो होता है वो ड्राइवन गियर होता है। जो लार्जर गियर इसका वो है वो वर्टिकल प्लेन के ऊपर काम कर रहा होता है, और जो स्मॉलर गियर होता है जो इसकी वजह से रोटेट करता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस तरह से हैंड ड्रिल मशीन जो है वो 2 गियर्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, ड्राइविंग गियर एंड ड्राइवन गियर। और इनकी ड्राइविंग गियर के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है और ड्राइवन गियर की वजह से मूव होता है, और हैंड ड्रिल मशीन जो होती है वो काम करती है और किसी भी जगह पे आप इसमें होल कर सकते हैं। Now the second major example of gear system is a bicycle. Your bicycle moves with the help of gears. 2 gears are linked with each other by a chain. The chain makes it possible for the smaller gear to move in the same direction as that of the big gear. The front gear is a large wheel with the teeth in which the pedal is fitted. The rear gear is a small tooth wheel which is present in the rear wheel of the bicycle. When you pedal the bicycle, you turn the big gear. The big gear in turns the chain which turns the rear wheel gear to move. When this small gear turns, the bicycle moves forward. In racing bicycle, more than 2 wheels work in the gear system. So students, bicycle is also a basic important example of gear system. जब आप पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, बड़े गियर को आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं
और उस फोर्स के रिजल्ट की वजह से जो स्मॉलर गियर है, जो चेन है, वो मूव करती है, और जिसकी वजह से फिर बाईसाइकिल जो है वो मूव करता है। जैसा कि आप पिक्चर नंबर 9.16 के अंदर गियर सिस्टम इन अ बाईसाइकिल देख सकते हैं कि जो पेडल व्हील है, पेडल गियर है, दैट इज द ड्राइविंग गियर, और जो चेन वाला गियर है दैट इज द ड्राइवन गियर। तो पेडल के ऊपर आप, यानी कि जो ड्राइविंग गियर है उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो गियर जो है फिर उस छोटे गियर को मूव करते हैं, और जिसकी वजह से बाईसाइकिल जो है वो मूव करता है। सो bicycle is also an example of gear system. Now the third common example from daily life is a wind-up clock. Gear system in a wind-up clock. A wind-up clock consists of many gears. The minute wheel is a smaller gear with a fewer teeth, while the hour wheel is a bigger gear with many teeth. The minute wheel rotates the minute hand and the hour wheel rotates the hour hand. तो बच्चों, जो वाइंड अप क्लॉक होती है वो भी गियर सिस्टम की जो होती है एक बेसिक एग्जांपल है, और उसके अंदर क्या होता है कि जो मिनट व्हील होता है उसका एक अपना गियर होता है, स्मॉलर गियर होता है, जबकि जो आर वाली जो उसकी होती है नीडल, उसका जो होता है वो बिगर गियर होता है। और ये दोनों गियर जो हैं एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं, और जो भी उसके अंदर सेल या बैटरी डली होती है जिसकी वजह से उसको वो फोर्स मिलती है, और उसकी वजह से फिर ये दोनों गियर्स मूव करते हैं और वाइंड अप क्लॉक जो है वो काम करती है। तो वाइंड अप क्लॉक जो है वो भी एक गियर सिस्टम की जो है वो एग्जाम्पल है। गियर्स आर ऑल्सो यूज इन मोटर व्हीकल्स, फैक्ट्री मशीन्स एंड मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मोटर व्हीकल्स के अंदर तो बेसिकली ज़ाहिर है गियर्स यूज़ ही होते हैं, हमें पता है, और इसके अलावा भी जितनी भी फैक्ट्रियों के अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब के अंदर गियर सिस्टम जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। क्योंकि बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि गियर सिस्टम क्या है, गियर सिस्टम ये है कि आप, उसका प्रिंसिपल ये है कि एक बड़ा व्हील है जिसके ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और उसके साथ अटैच्ड एक सेकंड व्हील है जो उस अप्लाइड फोर्स की वजह से मूव करता है, और इस तरह से हम किसी भी चीज़ को जो है एक डायरेक्शन के अंदर हम मूव कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को हम लेस भी कर सकते हैं, स्पीड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 96। यहाँ दोबारा से आपको एक बाईसाइकिल की एग्जांपल दी गई मुकम्मल पिक्चर के साथ। एक रेसर बाईसाइकिल जो होती है उसकी एग्जांपल आपको दी गई है। नाउ कम टू पेज नंबर 96। Here there is again an example of a racing bicycle. There is a picture of a racing bicycle. Have you ever seen a racing bicycle? When a racer wants to increase the speed of the bicycle, he or she changes the gears in such a way that the pedal gear is the larger wheel and the rear gear becomes the smallest wheel. तो बच्चों, जो रेसिंग बाइसाइकिल होती है उसके अंदर भी अगर आपने कभी किसी जगह पे कोई रेसिंग देखी हो साइकिल्स की, तो उसके अंदर भी जब भी स्पीड को कंट्रोल करना होता है तो जो भी रेसर होता है वो हमेशा पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। यानी कि पैडल जो होता है उसके अंदर वो एक ड्राइविंग व्हील होता है, बड़ा व्हील होता है, और जो उसका दूसरा व्हील होता है चेन वाला, वो उसका ड्राइवन व्हील होता है। तो वो फोर्स अप्लाई करता है पैडल के ऊपर, और इस तरह से वो स्पीड को कंट्रोल करता है। Now here you can see design of a system to lift heavy objects. A common way to lift heavy objects is shown in the schematic diagram. You can also design your own system to lift heavy objects. Also tell your teacher how can you reduce the effort even more to lift this heavy crate. Students, you can see in the picture there is a पुली सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पुलिस में शुरू में पढ़ाया था कि कम से कम एफर्ट के ज़रिए आप बड़ा से बड़ा जो हैवी जो वेट है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक क्रेन का सिस्टम होता है, क्रेन के अंदर भी पुली सिस्टम होता है, और वही चीज़ आपको दोबारा से इस स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी दिखाई गई है। Students, now this is all about chapter number 9, forces and machine. Now I would like to take a review of this chapter, that which things we have learned in this chapter. We learned about the definition of force and machines, then a wheel and axle made up of large wheel that is connected to a circular rod called axle. We studied about pulley. Pulley is also a wheel with a groove in its edge. A rope passes over a pulley. We discussed two kinds of pulleys, fixed pulley and movable pulley. We learned about gear is a tooth wheel, gear system is a kind of wheel and axle. Pulleys and gears can change the direction of force. We use pulley system and gear system in number of ways. A hand wheel machine, bicycle and a wind-up clock and many other machines
use gear. So students, these are all the main topics which we covered in this chapter, chapter number 9, forces and machines. And now we come to our exercise. Students, now open your book at page number 97. We start our exercise. Question number 1 is write proper term or word against each statement. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि इनके लिए क्या प्रॉपर वर्ड जो है वो यूज होता है। ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप पीछे से हर टॉपिक को दोबारा से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको आपने खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। व्हील एंड एक्सेल, पुली एंड गियर। तो अभी हमने पढ़ा पीछे व्हील एंड एक्सेल, पुली और गियर, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इनके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह 2 और मोर गियर्स वर्किंग टुगेदर, ये तो हमने आज के लेक्चर में ही कवर किया है कि 2 या 2 से ज़्यादा गियर जब काम कर रहे होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। अ ग्रूव्ड व्हील विच मूव्स अराउंड एन एक्सेल, वेरी इजी आंसर। हेल्प्स टू रोटेट ऑब्जेक्ट्स फास्टर एंड इजीली, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा। अ व्हील ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इन व्हील एंड एक्सेल, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा। तो ये सारा बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको इस टॉपिक को जाके पढ़ने की ज़रूरत है एक दफ़ा। जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो उसके स्टार्ट में ही आपको इनके लिए जो एक प्रॉपर टर्म और प्रॉपर वर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो खुद से ही आपने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है, उस ऑप्शन के ऊपर आपने सर्कल कर देना है। ये सारा का सारा उन 2 लेक्चर्स से मुताल्लिक ही है जो हम पढ़ चुके हैं और आपने खुद से इसको सर्कल करना है इन ऑब्जेक्टिव्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल मशीन, टैप हैंडल, अ जार लिड, अ स्क्रू ड्राइवर, अ गियर। अभी आपने इतना ज़्यादा हमने सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा, तो ABCD के अंदर से आपने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो सिंपल मशीन नहीं है उसको आपने सर्कल करना है। विच सिंपल मशीन कैन हेल्प अस टू मूव अ सेल ऑन अ सेल बोट, अ लीवर, अ व्हील एंड एक्सेल, अ गियर, अ पुली। यानी कि सेल बोट के ऊपर जो मशीन है वो कौन सी सिंपल मशीन जो है हमारे लिए काम कर रही है, किस सिंपल मशीन का जो प्रिंसिपल है वो सेल बोट के ऊपर काम करता है, वो लीवर है, वो व्हील एंड एक्सेल है, वो गियर है या वो पुली है। तो जो भी इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है आपने उसको सर्कल करना है। नंबर 3, गियर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ लीवर, व्हील एंड एक्सेल, कंपाउंड मशीन, वेज। अभी हमने गियर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि गियर सिस्टम जो है वो किस चीज़ की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इन चारों में से जो आपको सही आंसर लग रहा है आपने उसको इनसर्कल करना है। द चेन ऑफ योर बाईसाइकिल, अभी हमने चेन ऑफ बाईसाइकिल के बारे में भी पूरा डिटेल टॉपिक पढ़ा है। तो आपने बताना है कि चेन ऑफ बाईसाइकिल जो है वो पुली है, लीवर है, स्क्रू है या व्हील एंड एक्सेल है। तो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपने सर्कल करना है। देन द लास्ट वन इज विच पुली सिस्टम कैन मेक आवर वर्क ईजियर, अ पुली सिस्टम विद 2 पुलीज, अ पुली सिस्टम विद 3 पुलीज, अ पुली सिस्टम विद 4 पुलीज और अ पुली सिस्टम विद 5 पुलीज। तो जो भी करेक्ट आंसर है आपने उसके ऊपर इंसर्कल करना है, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपके पास कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके आपने आंसर्स लिखने हैं और ये आंसर्स भी आपके बुक के अंदर से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सम यूजेस ऑफ व्हील एंड एक्सेल इन आवर डेली लाइफ। व्हील एंड एक्सेल का अगर आप टॉपिक ओपन करेंगे तो व्हील एंड एक्सेल के हम डेली लाइफ के यूजेस जो भी हैं उसके अंदर से आप इसको लिख सकते हैं। नंबर 2, डिस्क्राइब 2 काइंड्स ऑफ पुलीज एंड देयर वर्किंग। आप पुली के टॉपिक पे जाएं, सबसे पहले पुली को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमने पुली की टाइप्स पढ़ी थी, मूवेबल पुली एंड फिक्स पुली। तो वो सारी डिटेल जो है आपने इस क्वेश्चन के अंदर इसके आंसर के तौर पे आपने देनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ गियर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। गियर सिस्टम जैसे आज ही हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने बताना है कि गियर क्या है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट ब्रीफली अबाउट द वर्किंग ऑफ अ हैंड ड्रिल एंड अ बाईसाइकिल। तो अभी हमने जो गियर सिस्टम पढ़ा है सारा, उसके अंदर हमने गियर सिस्टम की डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमने हैंड ड्रिल और बाईसाइकिल को डिस्कस किया है। तो सिंपली आपने वहाँ से जो हैंड ड्रिल की एग्जांपल है और जो बाईसाइकिल की एग्जांपल है विद डायग्राम आपने इसको
जो है यहाँ पे लिख देना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। स्टूडेंट जहाँ जहाँ डायग्राम रिक्वायर्ड है और डायग्राम मौजूद है वहाँ अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से ये सारे जो डिटेल आंसर हैं आपने इनको अपनी कॉपी में लिखना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, extend your thinking. There are some questions, some scientific questions, scientific reasons you have to answer. All these are according to the chapter you have studied. Number 1 is, a door knob is a wheel and axle. How does it work? एक डोर नॉब जो होता है, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो जो डोर नॉब लगा होता है दरवाजे के ऊपर, वो एक व्हील एंड एक्सेल के तौर पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये आपने बताना है, ठीक है। सेकेंड इज, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंपल मशीन would be used to lower an empty bucket into well and then lift the bucket full of water. बच्चों आपने ये अभी हमने जब पुलिस पढ़ी थी तो उसके अंदर आपने ये वाटर बकेट के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से कुएं के अंदर जो है वाटर बकेट जो है डाली जाती है और फिर आसानी से हम जो वो बकेट है उसको फुल करके भर सकते हैं और ऊपर लेके आ सकते हैं। तो अब आपने बताना है कि वो कौन सी टाइप की सिंपल मशीन है जो इसके अंदर यूज हुई है। When you let water into a bathtub, what kind of machine helps you open the tap? You have to answer this question. कि एक बाथटब के अंदर जब आप पानी को ओपन करते हैं, पानी के नल को, तो वो कौन सी मशीन होती है जिसके ज़रिए आप उस टैप को ओपन करते हैं। ये भी आप अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि वाटर टैप जो होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती है। तो ये आपने लिखना है, इफ द ड्राइविंग व्हील एंड द ड्राइवन व्हील ऑफ अ गियर सिस्टम आर ऑफ द सेम साइज, विच गियर विल मूव फास्टर। नंबर 5, हाउ आर द कंपाउंड मशीन्स डिफरेंट फ्रॉम सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन में और कंपाउंड मशीन में क्या फ़र्क होता है। अभी आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया गया है कि सिंपल मशीन क्या होती है और फिर कंपाउंड मशीन जो है वो कैसे बनती हैं, ठीक है। तो अब वो आंसर आपने इसके अंदर लिखना है कि डिफरेंट जो सिंपल मशीन्स हैं वो ही कंबाइन करती हैं एक किसी भी कंपाउंड मशीन को बनाने के लिए। तो इसको आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज, हाउ आर व्हील एंड एक्सेल, पुली एंड गियर्स अलाइक। व्हील एंड एक्सेल और पुली और गियर्स के अंदर क्या ऐसी कॉमन चीज़ है कि हम कह सकते हैं कि दे आर अलाइक, ठीक है। तो बच्चों अगर आप अच्छे तरीके से आपको जो है ये आज का लेक्चर और जो प्रीवियस लेक्चर है वो समझ आ चुका है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपके लिए देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज़ करना है और अच्छी तरह से दोबारा से पीछे से चैप्टर को पढ़ना है, तो यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ हियर देयर इज अनदर एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट मैप। आपके पास एक मैप दिया गया है जिसको कि आपने फिल करना है। फिल द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने देखना है कि इस मैप के अंदर किस किस जगह आपने इस वर्ड को जो है वो फिल करना है। सबसे पहले गियर, व्हील एंड एक्सेल, सिंपल मशीन, पुली, और इसी तरह से नीचे जो आपको हिंट्स दिए गए हैं, व्हील एंड अ रोप, व्हील विद अ रॉड, टूथ व्हील। तो बहुत इजी है आपके लिए, ये सारा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं और बहुत आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट मैप को जो दिए गए वर्ड्स हैं उनके मुताबिक आप फिल कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को आपने अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। नाउ हियर इन दिस स्लाइड्स there are some science projects. Students, if you do these projects, your concepts will be more clear. Number 1, visit a machine shop, report the types of simple machines you see, paste pictures of all the 6 simple machines in your science copy. Number 2, visit a nearby mechanical workshop, observe the machines which use wheel and axle, pulley system and gear system. How do these simple machines make the work of the mechanic easier? And the last, observe a gear system in an egg beater and a mincing machine. How does gear system make your work easier? So students, if you do all these projects, practically all the concepts of this chapter will be more clear to you. Students, this is all about today's lecture and exercise. Now note down your homework. Read the chapter again
and do all the book activities on your book, like fill in the blanks and choose the correct answer, etc., and the concept map. All these activities you will do on your book, and do all the question answers in your notebooks. Students, I hope you understand my lecture. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.